we have to discuss about the oxy acids of sulfur. फर्स्ट जो एसिड है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड this is H2SO3 sulfurous acid. After sulfurous acid we have thiosulfurous acid, and thiosulfurous acid is सल्फ्यूरस में ऑक्सीजन को हटा के S लगाया गया, दैट इज थायोसल्फ्यूरस एसिड. This is thiosulfurous acid. H2S2O2. This is thiosulfurous acid. And after thiosulfurous acid, we have sulfuric acid, king of chemicals. Sulfuric acid is this H2SO4. And after sulfuric acid, this is sulfuric acid H2SO4. After sulfuric acid we have thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid is तो थायो है तो इसमें डबल बॉन्ड O, this will be double bond S, this will be double bond S. This is thiosulfuric acid. After thiosulfuric acid we have diethionous acid. Diethionous acid, and that is this is diethionous acid H2S2O4. H2S2O4 is diethionous acid. And after diethionous acid we have pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid, it is also called oleum, and this is S. This is pyrosulfuric acid, oleum, H2S2 and O कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7. H2S2O7. H2S2O7 is pyrosulfuric acid, also known as oleum. And after this we have diathionic acid. Diathionic acid. Diathionic acid. After diathionic acid we have peroxy. We have peroxy monosulfuric acid, Carros acid कहते हैं इसको. This is peroxy monosulfuric acid, also known as Carros acid. Peroxy monosulfuric acid, also called Carros acid. And after this we have peroxy disulfuric acid or Marshall's acid. Peroxy disulfuric acid or Marshall's acid. This is H2S2 and oxygens देखिए 2 2 4 2 6 2 8. H2S2O8. H2S2O8 is called peroxy disulfuric acid or Marshall's acid. And after these oxy acids, we will now move to halogen family, 17th group. Halogen family, 17th group. और halogen family में we have
F, and lastly fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine is also there. So these are halogens. Their general configuration is NS2 NP5. This is NS2 NP5. These are halogens. In halogen families, after electronic configuration, हम physical properties पहले discuss कर रहे हैं. After electronic configurations, we will discuss about the atomic and ionic radii. तो as we move down the family, as we move down the group, जो atomic है और ionic radii है, that will increase down the group. और respective periods में they have the सबसे कम होता है इनका ionic radii या फिर atomic radii. सबसे कम होगा अपने अपने respective periods में इनका atomic radii. But as we move down the group, their atomic or the ionic radii increases. Reason आपको बता चुका हूँ मैं कि as we move down the group, जो shells हैं, number of shells जो हैं एक एक करके increase करती जाएंगी as we move down the group. Therefore, atomic and ionic radii increases down the group, whereas their atomic and ionic radii are the smallest in their respective periods. And after this we have ionization energy. Ionization energies, their ionization energies are quite high because their sizes are quite small. अभी मैंने बताया कि periods में इनके जो sizes हैं सबसे छोटे होते हैं, तो इनका जो ionization energy होगा that will be maximum. So they have very high ionization energy, but as we move down the group, their ionization energy decreases. नीचे जाने पे ionization energy decrease करती जाएगी because atomic size नीचे जाने पे increase होता जा रहा है, और atomic size increase होने से effective nuclear charge on the last electron will decrease down the group. इसलिए ionization energy will decrease down the group. After ionization energy, we have electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पहली बात, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो जितने भी हेलोजेंस हैं दे आर क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज उनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं, और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो भी बॉन्ड बनाया होगा, जिसके साथ भी उनका बॉन्ड बना होगा, उसमें शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगाएंगे ये, और ड्यू टू दैट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द फैमिली. तो ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज फ्लोरीन सबसे छोटा है. फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो सबसे ज्यादा लगेगा, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी. एंड आफ्टर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देयर इज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है. और सबसे पहले तो ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड वैसे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, उसके बाद क्लोरीन की, पर होता नहीं है ऐसा. ट्रेंड ये है फ्लोरीन की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, उसके बाद इट विल बी, ट्रेंड विल बी लाइक दिस, डिक्रीज करती जाएगी. उसके बाद फ्लोरीन की एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है? बिकॉज फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं बहुत ज्यादा.
और ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू जो एडिशन क्लोरीन में है वो इजी है। फ्लोरीन में छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर क्वाइट हाई, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। ये नहीं कह रहा मैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहता फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेगा बिकॉज इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स है 7, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा ये, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा ये और से, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है फ्लोरीन की, ऐड करवाने की जो टेंडेंसी है अपने में फ्लोरीन की, वो कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन का साइज है बड़ा, फ्लोरीन का साइज है छोटा, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। देयरफॉर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में दैट इज फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी मैक्सिमम है दैट इज क्लोरीन। आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी कम टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। After this we come to oxidation states. So they all have the tendency to show -1 oxidation state because all of them they want to add one electron to them in order to complete their octet. -1 सारे शो करेंगे, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो हैं दे कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1, +3, +5 एंड +7 ऑल्सो। जैसे क्लोरीन का केस ले लें, क्लोरीन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। लास्ट शेल देखें, 3s2, 3p5, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, शेयरिंग हो सकती है। और आगे देखिए, वी हैव एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ऑल्सो इन केस ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन में ये नहीं थे, तो इसकी टेंडेंसी ये भी रह सकती है कि जब एक्साइटेशन होगी, एक एक करके एक्साइट करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं, तो देखिए ये केस बन रहा है, थ्री डी में चला गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। सिमिलरली ये आगे जाता है अगर तो +5, ये भी आगे जाता है तो +7। सो दैट मीन्स फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे कैन शो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। -1 शो करने की टेंडेंसी सारों की है, लेकिन नीचे जो आयोडीन वगैरह है उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नीचे जाते जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है। So these were oxidation states, and after oxidation states we have color. जितने भी हैलोजेंस हैं दे इम्पार्ट कलर। क्यों? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर। जब इन पे रेडिएशंस गिरेंगी रेडिएशंस गिरेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, और एक्साइटेशन के टाइम वो कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो कंप्लीमेंट्री कलर, जो जैसे वाइट लाइट गिर रही है तो कोई कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, वॉयलेट पोर्शन अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो दैट मीन्स येलोइश दिखेगा वो वाला कंपाउंड, और अगर येलोइश और रेड वाला एब्जॉर्ब हो रहा है तो दैट विल अपीयर टू बी वॉयलेट। तो फ्लोरीन में एक्साइटेशन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन
और स्मॉल साइज है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कौन से वाला कलर एब्जॉर्ब होना चाहिए इसमें, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होना चाहिए इसमें, फ्लोरीन के केस में वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होना चाहिए। एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉयलेट कलर इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता देखिए विबग्योर में इस साइड को लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, और दैट मींस इस साइड को न्यू इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। जिस साइड को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है उस साइड को एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। अब मैं कह रहा हूं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए दैट मींस ये वाला कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दिखना कौन सा चाहिए, ये इस साइड वाला कंप्लीमेंट्री कलर्स की तरह अपीयर होगा ये। तो इट विल अपीयर टू बी, जो फ्लोरीन है दैट विल अपीयर टू बी डी लाइट येलो, फ्लोरीन अपीयर्स टू बी लाइट येलो, और आयोडीन जो है दैट अपीयर्स एज डीप वॉयलेट, इट अपीयर्स एज डीप वॉयलेट। तो वॉयलेट क्यों अपीयर हो रहा है, बिकॉज इसमें आयोडीन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है कम, तो लार्जर वेवलेंथ वाले कलर्स एब्जॉर्ब होंगे, लार्जर वेवलेंथ वाले दैट मींस लेस फ्रीक्वेंसी वाले जिनकी एनर्जी कम है, और अपीयर कौन से होंगे, कंप्लीमेंट्री कलर्स, तो इट विल बी वॉयलेट इन कलर, डीप वॉयलेट इन कलर। सो कलर्स भी देते हैं ये, जब व्हाइट लाइट गिरती है दे अपीयर टू बी कलर्ड, बिकॉज जब ये एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कंप्लीमेंट्री वेवलेंथ्स अपीयर हो जाएंगी, देयरफॉर दे आर कलर्ड। After color we have bond dissociation energies. तो bond dissociation energies ऐसे करके डिक्रीज, सॉरी इट विल बी अदर वे अराउंड, डिक्रीज करती जाएगी, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। आयोडीन के केस में दोनों आयोडीन्स बड़े हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी decreases down the group. After bond dissociation energy we have melting and the boiling points. तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कौन सी हैं इनमें, फ्लोरीन में F2Cl2 Br2 I2 में इनमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। और ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, आपको पता है जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब साइज को क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं F2 से Cl2, Cl2 से Br2, Br2 से I2, जो साइज है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज करता जा रहा है एज वी आर मूविंग डाउन द फैमिली। साइज इंक्रीज करने की वजह से जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज करती जा रही हैं एज वी आर मूविंग डाउन द फैमिली। और क्योंकि इंटरेक्शंस इंक्रीज करती जा रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएंगे एज वी मूव डाउन द फैमिली। सो बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट दे विल इंक्रीज डाउन द फैमिली, डाउन द ग्रुप। आफ्टर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स वी हैव सॉल्युबिलिटी। तो हैलोजेंस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, और उनकी सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट्स में दैट डिक्रीजेस डाउन द फैमिली। F2 जो है फ्लोरीन जो है दैट शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब वाटर से इसको रिएक्ट करते हैं हाईली एक्सोथर्मिक है, और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ HF प्लस O2, ऑक्सीजन बन सकती है।
So this will be twice, 4 times and twice. And it can also show this reaction H2O के साथ, it can also lead to formation of O3, ओजोन भी बन सकती है, thrice, तो F2 का वाटर के साथ ये रिएक्शन होता है, HF एंड O2, HF एंड O3 बन सकती है, ओजोन एज वेल एज ऑक्सीजन बन सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज डाउन द फैमिली। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हैं CHCl3 वगैरह, क्लोरोफॉर्म वगैरह, उनमें दे आर सॉल्युबल, उनमें दे आर सॉल्युबल। एंड आफ्टर सॉल्युबिलिटी we have oxidizing power. The oxidizing power decreases down the family. Oxidizing power decreases down the family. Oxidizing power जो है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दीज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। अगर ये खुद गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो दूसरे में से लूज करवा देंगे, दूसरे सब्सटेंस में से अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं किसी और सब्सटेंस से ये, तो दैट मीन्स उसको क्या करवा रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडाइज करवा देंगे। फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। कोई भी हेलाइड आयन हो, चाहे Cl नेगेटिव हो, चाहे Br नेगेटिव हो, चाहे I नेगेटिव हो, उसको ये ऑक्सीडाइज करवा सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। खुद क्या बन जाएगा ये, ट्वाइस F नेगेटिव प्लस X2। Whereas जो Cl2 है that can oxidize only Br negative and I negative, Br2 can oxidize only I negative, whereas F2 can oxidize Cl negative, Br negative and I negative, all of them. And after the oxidizing power, we have now their chemical properties. First of all, formation of halides. फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स। तो हेलोजेंस जो हैं, मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं, मेटल जो हैं, उनके साथ ये आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स के साथ दे फॉर्म कोवलेंट हेलाइड्स। मेटल्स के साथ आयनिक हेलाइड्स, नॉन मेटल के साथ कोवलेंट हेलाइड्स। एंड आफ्टर हेलाइड्स वी हैव फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो देखिए कौन से हाइड्राइड बन रहे हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। जो हाइड्राइड्स हैं, इनके फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी हैव टू डिस्कस इज बॉइलिंग पॉइंट। तो HF और HF में बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस जब भी किया जाता है, आपको पता होना चाहिए फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कौन सी हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। अब HF का देखें, HF में वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding in case of HF like this, H and F. F is quite electronegative element, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H पे दे विल बी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। एक और HF होगा साथ में, उसमें यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। ये जो इंटरेक्शन है हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बाकी वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी।
बाकी वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ द एटम। जैसे Cl है, Cl के बाद Br है, Br के बाद I है, जो साइज है एटम का इंक्रीज करता जा रहा है, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसके बाद इंक्रीज करती जाएंगी। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, HF का ज्यादा एज कंपेयर टू HCl, उसके बाद इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस विल बी द ट्रेंड। HF का एक्सेप्शनली हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन HF एंड HF। बट आफ्टर दिस ये ट्रेंड क्यों है, बिकॉज साइज जो है एटम का वो इंक्रीज करता जा रहा है, Cl से बड़ा है Br, Br से बड़ा है I, इसलिए वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हाई होंगी इन केस ऑफ HI एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl। तो जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। और ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी क्या होगा, वॉलेटाइल मींस वेपर्स बनने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा। सबसे कम वॉलेटाइल कौन सा होगा, HF। बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, वॉलेटाइल नहीं हो पाएगा, ये मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाएंगे, वेपराइज नहीं हो पाएंगे इसमें, तो ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी इसका उल्टा होगा बिल्कुल। एंड आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलेटिलिटी इन हाइड्राइड्स का हमने डिस्कस करना है थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए HF फ्लोरीन छोटा सा है, उसके बाद HCl साइज बड़ा हो रहा है, उसके बाद HBr और साइज बड़ा हो गया, यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे जैसे इन हैलोजेंस का साइज बड़ा होता जा रहा है, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने की वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती जा रही है। इसलिए नीचे को देखें, HF सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। इसको तोड़ने के लिए, HF को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ HF। इसलिए very large amount of energy has to be provided in order to break this down HF। नीचे जब जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, और बॉन्ड डिसोसिएशन डिक्रीज होने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। एंड आफ्टर थर्मल स्टेबिलिटी वी हैव एसिडिक करेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर। साइमल्टेनियसली इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं इसको, एसिडिक करेक्टर एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एसिडिक करेक्टर मींस H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी, नीचे जाएं तो H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर as well as acidic character will increase down the family. So these were the hydrides of halogens, and after hydrides we have oxoacids. तो ऑक्सो एसिड्स में क्लोरीन के ऑक्सो एसिड डिस्कस करते हैं, HClO, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, देन वी हैव HClO2, दिस इज क्लोरस एसिड, then we have HClO3, this is chloric acid, and then we have HClO4, this is perchloric acid. Hypohalous, hypochlorous HClO, chlorus HClO2, chloric HClO3, and perchloric HClO4. These are four oxoacids of chlorine.
अब इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज या डाउन इंक्रीज या डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम नीचे को मूव कर रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें देखिए अगर एसिड की तरह बिहेव करता है HCl लो, तो क्या करेगा ये H पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव ये बना देगा। HClO2 अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है तो इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड ClO2 नेगेटिव। देन HClO3 it will form H positive and ClO3 negative. Then we have HClO4, H positive and ClO4 negative. ये एसिड्स हैं और ClO नेगेटिव एक बेस है बिकॉज इट कैन डोनेट। HClO एक एसिड क्यों है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है सब्सटेंस दैट इज एन एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज अ बेस। HClO प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, ClO नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये जो एसिड है इसका जो कंजुगेट बेस बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें सारों में देखिए आप, सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हैं, उस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज। Cl तो सारों में सेम ही है, ऑक्सीजन वेरी कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, दो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, तीन ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, चार ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ClO नेगेटिव में। सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विल बी ClO नेगेटिव। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होना चाहिए? वीकेस्ट होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, HClO जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है और ClO नेगेटिव बना रहा है, ये एसिड है, इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव, और ये ClO नेगेटिव एक बेस है, इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन। अब इन बेसिस की स्ट्रेंथ देखनी है आपने, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है। ClO नेगेटिव, ClO2, ClO3, ClO4 नेगेटिव, सारों पे सिंगल सिंगल नेगेटिव चार्ज। Cl सारों में एक एक है, सारा फर्क पड़ रहा है तो ऑक्सीजन से पड़ रहा है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। चार ऑक्सीजन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर एक ऑक्सीजन में अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी? तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो दैट मींस ये अच्छा बेस है एज कंपेयर टू नीचे वाले जो बेसेस हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड एक वीक एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर रही है? देखिए इसका जो ट्रेंड होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ट्रेंड विल बी लाइक दिस, HClO4 सबसे अच्छा एसिड होगा, उसके बाद वी हैव HClO3, उसके बाद वी हैव HClO2, उसके बाद वी हैव HClO। दिस विल बी ट्रेंड ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड आफ्टर दिस थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। अब इनमें देखें HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करता जा रहा है, नीचे जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, Cl को x मान लीजिए, इसमें ऑक्सीजन पे -2 होता है, H पे +1 होता है, तो -2 इसका, +1 इसका, -1 हो गया, और इसका x -1 इज इक्वल टू 0, x विल बी 1। तो ऐसे करके नीचे चलते जाएं तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने की वजह से Cl और O के बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं उसका कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा Cl का, तो वैसे वैसे Cl और O के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका कोवलेंट करैक्टर भी इंक्रीज करता जाएगा। और कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करने की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी। HClO4 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा तो इसलिए ये सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थर्मल स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग डाउन द फैमिली एंड ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इज डिक्रीजिंग डाउन दिस, ये वाला जो ट्रेंड है ऐसे करके देखिए। ये था पहले, दिस वाज एसिडिक स्ट्रेंथ,
सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, यही थर्मल स्टेबिलिटी की भी स्ट्रेंथ है, थर्मली स्टेबल भी सबसे ज्यादा यही होगा। और इससे उल्टी जो ट्रेंड होगा, बिल्कुल उल्टा इससे, ये वाला जो ट्रेंड लिखा है मैंने, इससे जो उल्टा ट्रेंड होगा दैट विल बी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने कहा थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात हो रही है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने की वजह से क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। और क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, तोड़ना इसको मुश्किल होगा HClO4 को सबसे, और क्योंकि तोड़ना मुश्किल होगा इसलिए सबसे कम वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी HClO4 होगा। So these were the oxy acids of halogen family. I have discussed only the oxy acids of Cl. तो ऐसे ही ट्रेंड्स जो होते हैं HBRO वगैरह में होंगे, जो हाइपोब्रोमस वगैरह होंगे उनमें भी यही ट्रेंड्स होंगे, इसी तरह से डिस्कशन होगी बाकियों में भी। Next topic which we have to discuss in halogens is interhalogen compounds. तो interhalogen compounds क्या होते हैं? Halogens के आपस में ही जो compounds बनते हैं they are called interhalogen compounds. जैसे for example we have interhalogen compounds में ClF3, ClF3। अब इनमें हमें कुछ इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स शेप इज। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जैसे Cl है और ये F है, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं वो एक ही ग्रुप से हैं, हैलोजन फैमिली से। Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन F के भी साथ होते हैं, तो 7 4s आर 28, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, नीचे 4 बच रहा है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, इस नंबर को एडअप कीजिए, 5 आ रहा है। 5 का मीनिंग है sp3, 4 यहां तक हो गए, और 5वां D, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF3 में Cl की हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप क्या होना चाहिए? इट विल जब इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो Cl बीच में, यहाँ पे ट्राइंगल है, एक F यहाँ पे, एक ऊपर को, एक यहाँ पे, दिस इज ClF3, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, इस साइड को होगा। सो लोन पेयर को तो शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी देखिए अब क्या बच रहा है, ये ऐसे करके, और इसको ऐसे को इन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे करके ये शेप आ रही है इसकी, टी शेप्ड मॉलिक्यूल होगा। ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी, और जो शेप होगी एग्जैक्ट शेप दैट विल बी टी शेप्ड होगा ये ClF3। नेक्स्ट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में IF5, IF5 तो इसमें भी सारे हैलोजेंस हैं। कितने हैलोजेंस हैं यहाँ पे? 5 एंड 6 हैलोजेंस हैं। 6 7s आर 42, 8 से डिवाइड कीजिए, 2 रिमाइंडर, अगेन 2 से, ये इनको एडअप कीजिए, 5 + 1 6, 6 मीन्स sp3, 4 हो गए यहाँ तक, D2, और sp3 D2 जब भी होती है तो मॉलिक्यूल ट्राइज टू एक्वायर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा इसमें मॉलिक्यूल IF5। तो कैसे आएगी देखिए, IF5 में और एक पोजीशन पे भी है लोन पेयर। सो जो ज्योमेट्री है दैट इज स्क्वायर बन रहा है, देखिए नीचे, इसको इनको ज्वाइन करें हम, इस F को, इस F को, ऐसे को, पीछे वाले F को ऐसे ज्वाइन करें तो पिरामिड बनेगा।
it has square pyramidal geometry. IF5 has square pyramidal, जो shape होगी that will be square pyramidal. और hybridization is sp3d2 hybridization in case of IF5. Next interhalogen जो हमने discuss करना है that is IF7. That is IF7. कितने हेलोजेंस हैं देखिए 8, तो 8 7s आर 56, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 7s आर 56, नंबर आ रहा है आपके पास 7, और 7 मीन्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 4 हो गए यहां तक, और उसके बाद 3 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल एक्वायर्स pentagonal bipyramidal geometry. It will acquire pentagonal bipyramidal geometry. So it will be like this. I पेंटागन है ये, एक F, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक नीचे को और एक ऊपर को। दिस इज पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, बीच में पेंटागन है। ये वाले जो प्लेन है ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है सारा, दिस इज टुवर्ड्स यू, आपकी साइड को है, एक ऊपर को एक नीचे को, फ्लोरीन ऐसे करके पिरामिड ऊपर को भी बनेगा, नीचे को भी एक पिरामिड बन रहा है, तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। सो दीज वर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, और हमने हैलोजेंस डिस्कस कर लिया है 17th ग्रुप। आफ्टर दिस वी हैव 18th family, 18th group, that is noble gases. Next we have to discuss noble gases, 18th group. इसमें हमारे पास हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon, which is radioactive. So these are the noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. और इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6, that is their octet is complete, NS2 NP6, हीलियम हैज NS2 कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी जितने भी हैं हीलियम का ड्यूप्लेट पूरा है, बाकी जितने भी नीचे वाले हैं दे हैव NS2 NP6 configuration, that is their octet is complete. After electronic configuration of noble gases, we will discuss their atomic radii. Their atomic radii. तो in their respective periods, इनके एटॉमिक रेडियाई मैक्सिमम होते हैं। नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियाई है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में मैक्सिमम होता है। रीजन इसका ये है कि ये जो जितने भी नोबल गैसेस हैं इनके बीच में वी हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो रेडियस हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी वंडरवॉल्स रेडियाई। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिव पीरियड्स में दे हैव कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन से, इसलिए कोवलेंट रेडियस की जो लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू वंडरवॉल्स रेडियाई। इसलिए जितने भी ये नोबल गैसेस हैं इनका जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज मैक्सिमम इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। और जब नीचे को जाएंगे हीलियम से नियॉन, आर्गन, krypton, xenon, radon, as we move down the group, atomic radii increases down the group. Reason being, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक एक शेल एड अप होती जा रही है। नो डाउट कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो शेल में इंक्रीज होने वाला जो फैक्टर है दैट विल डोमिनेट ओवर द फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फिर से मैं बताता हूं आपको, देखिए न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई नीचे जाने पे इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अपने पीरियड्स में देखें
तो दे हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। आर्गन का अपने पीरियड में मैक्सिमम होगा, क्रिप्टन का अपने पीरियड में एटॉमिक रेडियाई मैक्सिमम होगा, बिकॉज इनमें वी आर कंसिडरिंग वंडर वॉल्स रेडियाई। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं दे हैव कोवलेंट रेडियस। आफ्टर दिस एटॉमिक रेडियाई, next physical property which we have to discuss is ionization energy. Ionization energy. तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, ns to np6, देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि स्टेबल हैं ऑलरेडी। तो their ionization energy is quite high, but as we move down the group, helium से neon, argon, krypton, atomic size increases down the group, therefore effective nuclear charge जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा that will be less, इसलिए ionization energy जो है नीचे जाने पे डिक्रीज करती जाएगी। तो ionization energies are quite high, but as we move down the group, ionization energy decreases down the group. Next physical property is their melting and the boiling points. Melting points and the boiling points. Melting and boiling points consider करें अगर हम इनके, they have very low melting and the boiling points. Reason ये है कि इनके बीच में जो forces of interaction हैं वो weak van der Waals forces of interaction हैं, और जब forces of interaction weak हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स विल ऑल्सो बी क्वाइट लो वैल्यूज होंगी इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? बिकॉज नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से van der Waals फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन भी इंक्रीज करती जाएंगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। देयरफॉर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। Next physical property is ease of liquefaction. Ease of liquefaction. वैसे तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत वीक हैं, लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसमें, जैसे जैसे वी विल मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को क्या होता जा रहा है? van der Waals फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होती जा रही है। तो नीचे वाले जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे वालों को, नीचे वाले नोबल एलिमेंट्स को या इनर्ट गैसेस कह लें उसको, उनको लिक्विफाई करना इजी होता जाएगा, बिकॉज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करती जाएंगी। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करती जाएंगी तो दैट मीन्स कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा नीचे वाली गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, बिकॉज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है नीचे जाने पे, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है, इसलिए नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको लिक्विफाई करना इजी होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले जो नोबल गैसेस हैं। आफ्टर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन वी हैव सॉल्युबिलिटी। अगर इनकी पानी में H2O में सॉल्युबिलिटी देखें तो हमें पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। वाटर जो है H2O जो है दैट इज अ डाइपोल। तो डाइपोल जो है इन गैसेस में, इन इनर्ट गैसेस में क्या इंड्यूस कर देगा? डाइपोल इंड्यूस कर देगा। तो कौन सी जो इंटरेक्शंस हैं दे विल कम इनटू प्ले? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं दे विल कम इनटू प्ले। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आपने फजान्स रूल्स किए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है हीलियम का, और जैसे नीचे जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पे H2O है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस H, यहां पे H2O है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस H। इनफैक्ट यहां पे डेल्टा नेगेटिव तो होंगे ही होंगे ऑक्सीजन पे, देयरफॉर तभी वहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो डायपोल है वाटर में, ये इसमें
जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको कंपेयर करें और हीलियम को कंपेयर करें, इसमें डायपोल इंड्यूस कर देगा, पोलराइज कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऐसे करके पोलराइजेशन हो जाएगी, उस साइड को चला जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो नीचे वाला जो है वो उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा आएंगी एज कंपेयर टू हीलियम, बिकॉज इसमें पोलराइजेशन जो होगी कम होगी हीलियम की, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंटैक्ट है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन जो होगी ज्यादा होगी नीचे वाले एलिमेंट्स में, इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस इसमें ज्यादा होंगी, तो सॉल्युबल भी नीचे वाले ज्यादा होंगे। हायर द डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पानी में मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की है, पोलर सॉल्वेंट में। आफ्टर सॉल्युबिलिटी वी हैव देयर मोनोटॉमिक नेचर। तो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, NS2 NP6, इनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, therefore they exist in the monatomic form. After monatomic nature, adsorption, तो हमें पता है एड्सॉर्प्शन भी दो तरह की होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं गैस और सॉलिड के बीच में, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देयर आर ओनली वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड एंड द गैस। अब जब ये नोबल गैसेस एड्सॉर्ब होंगी, दे विल बी फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द सॉलिड एंड दीज गैसेस। तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कौन सी गैस की होनी चाहिए? सबसे ज्यादा गैस वो एड्सॉर्ब होनी चाहिए जिसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो बिटवीन सॉलिड एंड दी गैस। अब नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज कर रही है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो एंड विद द सॉलिड आल्सो, देयरफॉर एड्सॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, दैट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दैट विल इंक्रीज डाउन द फैमिली। Next is their polarizability. तो अभी हमने डिस्कस किया कि पोलराइजेशन किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की ज्यादा होगी या नीचे वालों की ज्यादा होगी। जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है उसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन है तो इसकी पोलराइजेशन कम हो पाएगी, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन है तो इसकी पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटैक्ट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा दूर है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम लग रही है, इसलिए इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। चाहे आप इस साइड नेगेटिवली चार्ज कोई एनाइन मान लें तो उस साइड को डिस्टॉर्ट ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है इनमें? रेडॉन की, लेकिन रेडॉन इज रेडियोएक्टिव। जीनॉन, इनमें देखें अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, पोलराइजेबिलिटी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ जीनॉन। एंड आफ्टर पोलराइजेबिलिटी वी हैव डिफ्यूजन। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज डिफ्यूजन। तो हमें पता है फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा गैस का उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लेस। तो इन सब में देखिए नीचे को जा रहे हैं तो मासेस इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज करता जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इन केस ऑफ हीलियम, उसके नीचे जितने जाते जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज डाउन द फैमिली। These were the physical properties, and after physical properties we will come to chemical properties noble gases की। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हमने डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरेट्स। केज लाइक कंपाउंड्स को क्लैथरेट्स कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरेट्स।
केज लाइक कंपाउंड्स, तो होता क्या है कि नोबल गैसेस जो हैं वो कैविटीज में बैठ जाती हैं। किसकी कैविटीज में? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसकी कैविटीज में ये गैसेस जो हैं ये बैठ जाएंगी और एक केज लाइक कंपाउंड्स को बनाएंगी, और उन कंपाउंड्स को कहते हैं क्लैथरेट्स। दे आर कॉल्ड क्लैथरेट्स। सो आफ्टर क्लैथरेट्स there is formation of interstitial compounds. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अगर स्मॉल नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटालिक लैटिसेस की जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स मीन जो वॉइड्स हैं मेटालिक लैटिसेस में, उन वॉइड्स में जाके स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम्स जो है वहां जाके बैठ जाए इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो सॉर्ट ऑफ कंपाउंड जो फॉर्म होंगे दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इनमें जो है हीलियम जो है दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। हीलियम इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग interstitial compounds. After interstitial compounds we have discovery of noble gases. Discover कैसे हुई हैं noble gases? तो एक साइंटिस्ट हुए बार्टलेट करके, उन्होंने ये रिएक्शन करवाया था सबसे पहले ऑक्सीजन प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का, और देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और इससे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन का जो डायमीटर है, इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है दैट इज कंपेरेबल विद द डायमीटर ऑफ नोबल गैसेस, और ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज आल्सो कंपेरेबल विद नोबल गैसेस एंड स्पेशली जीनॉन से कंपेरेबल है। तो उसने कहा कि अगर ऑक्सीजन जो है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ कंपाउंड बना पा रहा है तो व्हाई नॉट जीनॉन, एंड ही ट्राइड दिस जीनॉन प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एंड देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉलिड। ये कंपाउंड बना था जीनॉन पॉजिटिव एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। It was the beginning of the formation of compounds by noble gases. It was done by Bartlett. तो क्योंकि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ जीनॉन ने कंपाउंड बनाया, तो साइंटिस्ट थॉट कि जो फ्लोरीन है दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ कंपाउंड बना रहा है जीनॉन, तो फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं बनाएगा? और दे ट्राइड टू फॉर्म कंपाउंड्स विद फ्लोरीन आल्सो, और देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स विद जीनॉन। जीनॉन के 3 फ्लोराइड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन डाइफ्लोराइड, और उसके हम प्रेपरेशन और हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन डिस्कस करेंगे विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो in the chemical property next we are going to discuss the fluorides of xenon. First is xenon difluoride. इसकी प्रेपरेशन देखिए। सबसे पहले xenon प्लस F2 रेशियो होगा 2:1, 2:1, और टेम्परेचर है 673 केल्विन। कैटलिस्ट इज निकल ट्यूब की प्रेजेंस में करेंगे, निकल ट्यूब्स में से पास करवाएंगे xenon एंड फ्लोरीन इन द रेशियो 2:1, 673 केल्विन, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए इसकी। सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, xenon के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हैलोजन है फ्लोरीन, 7 2s आर 14, 14 प्लस 8 22, 22 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, क्या नंबर आ गया? 2 3 5। 5 मीन्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? इट शुड हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. It should have trigonal bipyramidal geometry
xenon डाइफ्लोराइड, और देखिए कैसे कौन सी शेप एक्वायर करेगा ये। दो फ्लोरीन ऐसे को ऊपर नीचे या तीन पोजीशंस पे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे वी हैव 3 लोन पेयर्स, तो इट हैज लीनियर शेप। xenon डाइफ्लोराइड इज लीनियर इन शेप. Hybridization is sp3d hybridization and shape is sp3 and shape is linear. And after this hydrolysis of xenon difluoride, अगर इसकी hydrolysis करें तो this will be the reaction. Balance करके it will be twice and twice, and this will be twice Xc plus O2 plus HF. तो मेनली यू हैव टू रिमेंबर कि बनेगा क्या, xenon बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, तीन चीजें बनेंगी ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon डाइफ्लोराइड. एंड आफ्टर दिस वी हैव xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड XeF4. तो इसकी प्रेपरेशन जो है xenon एंड फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1:5, निकल ट्यूब्स में सेम वैसे ही रेशियो विल बी 1:5. निकल ट्यूब्स, टेम्परेचर ऑफ 673 Kelvin, and there will be formation of xenon tetrafluoride. Now if we balance this, this will be twice of F2, and this is xenon preparation of xenon tetrafluoride. और इसका हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर दिस, हाइब्रिडाइजेशन विल बी 8 इसके, 7 एक फ्लोरीन में, 4 में कितने हो जाएंगे 28, 28 प्लस 8 दिस विल बी 36. 36 को डिवाइड कीजिए 8 से, अब 2 से, तो दिस नंबर इज 4 प्लस 2 6. 6 मीन्स sp3, 4 हो गया वहां तक, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए इसकी, होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल. sp3 D2 आ रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, all the positions equivalent, but on the two positions we should have two lone pairs. एक ऐसे को लोन पेयर, एक ऐसे को लोन पेयर. ये जो शेप आई इसकी दैट इज स्क्वेयर प्लेनर. स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर बन रहा है ये वाला, एंड इट इज प्लेनर, मॉलिक्यूल इज प्लेनर. लोन पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द शेप. एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन ये जो बना जहां को बॉन्ड्स बन रहे हैं दैट आर इन सिंगल प्लेन, और एक स्क्वेयर बन रहा है, तो दिस हैज स्क्वेयर प्लेनर शेप. एंड नाउ टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड. तो पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मेनली यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स. xenon टेट्राफ्लोराइड की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाए, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ xenon, xenon ट्राईऑक्साइड, HF एंड ऑक्सीजन. एंड नाउ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, and now partial hydrolysis plus H2O, then there is formation of xenon oxidifluoride. Partial hydrolysis में there is formation of xenon oxyfluoride plus hydrogen fluoride. This you have to remember, these are quite important questions कि xenon oxyfluoride कैसे बनता है. xenon tetrafluoride की partial hydrolysis करने पे there is formation of xenon oxidifluoride, और xenon trioxide कैसे बन रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अगर xenon टेट्राफ्लोराइड की, then there is formation of xenon trioxide. And after this we have xenon hexafluoride.
तो इसकी प्रेपरेशन देखिए, 1:20 रेशियो में xenon एंड फ्लोरीन. टेम्परेचर विल बी 473 to 523 Kelvin and जो प्रेशर है दैट इज 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर. 473 to 523 Kelvin will be the temperature and pressure will be 50 atmosphere. अगर ये करें हम, ऐसा प्रेशर रखें और ऐसा टेम्परेचर, then there is formation of xenon hexafluoride. इसकी हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर दिस, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, 7 फ्लोरीन में होते हैं. 7 6 42, 42 प्लस 8 50, 50 को 8 से डिवाइड कीजिए, 6 are 48, 2 1s are 2, 6 plus 1 7 नंबर आ रहा है एंड 7 मीन्स sp3, 4 हो गए यहां तक, एंड d3, sp3d3. तो क्या ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा xenon hexafluoride? पेंटागोनल बायपिरामिडल, बट एक्चुअली इट्स ज्योमेट्री और शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. इट हैज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विच यू हैव टू रिमेंबर. ऑक्टाहेड्रल टाइप होगा लेकिन थोड़ा डिस्टॉर्शंस होंगी बिकॉज एक जगह पे वहां पे लोन पेयर है एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ xenon hexafluoride. So these were the fluorides of xenon. And after this we have oxides of xenon. And oxides में mainly we have to discuss the hybridization and the geometries. First oxide is xenon tetraoxide. सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन निकाल लें. xenon 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? एक में 6, 6 4s are 24, 24 and 8 32, 32 को 8 से डिवाइड कीजिए, 4 नंबर आ रहा है. 4 मीन्स ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon tetraoxide. कौन सी शेप एक्वायर करेगा? टेट्राहेड्रल. It will acquire tetrahedral like this, xenon tetraoxide. And after xenon tetraoxide we have, in fact before xenon tetraoxide we have xenon trioxide also. एक xenon trioxide भी फॉर्म करता है xenon. xenon trioxide जो है इसमें भी निकाल के देखें, 8. And after this we have 6 ऑक्सीजन्स में, 6 3s are 18, 18 और 8 26, 26 को 8 से डिवाइड कीजिए, 3 plus 1 4. Again we should have sp3 hybridization. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा ये. xenon trioxide will try to acquire tetrahedral geometry, but in one position there will be lone pair present and due to this it has pyramidal geometry. pyramid, ये this is not included in the geometry. आपने लोन पेयर को ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करना होता, शेप में इंक्लूड नहीं करना होता. इतनी शेप आ रही है देखिए, नीचे ट्रायंगल बन रहा है ये और ऐसे को पिरामिड बन रहा है सारी साइड से, तो इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री. xenon trioxide has pyramidal geometry. And after this we have oxyfluorides. Oxyfluorides, and first oxyfluoride is xenon oxidifluoride. इसमें हमने बिल्कुल वैसे ही निकालनी है. पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, 8 इसके, 6 इसके और एक एक फ्लोरीन के. 7 7 14 हो गए, 14 plus 6 20, 28 आ रहा है नंबर. 28 को डिवाइड कीजिए आप 8 से, 4 2 2s are 4, 3 plus 2 5 आ गया नंबर. 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन. sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा ये. ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री xenon oxidifluoride. तो देख लीजिए कैसे आएगी ज्योमेट्री इसकी एक्चुअल में. xenon oxidifluoride ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री.
एक साइड को ऑक्सीजन आ रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। तो कौन सी शेप आ रही है देखिए, टी शेप्ड मॉलिक्यूल है ये, ऐसे को टिल्ट करके देखिए इसको, तो टी बन रहा है ये, दिस इज टी शेप्ड मॉलिक्यूल ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। hybridization is sp3d hybridization. It will try to acquire trigonal bipyramidal geometry, but actually its shape will be T-shaped molecule. And after this xenon oxidifluoride, we have xenon oxy tetrafluoride. तो सबसे पहले hybridization 8 6 28 14 plus 28 we have 42, 42 को 8 से डिवाइड कीजिए, अगेन 2 से, 6 नंबर, 6 मीन्स sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा। लेकिन होगी क्या शेप इसकी देखिए, ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड की, चार फ्लोरीन्स ऐसे को, एक ऑक्सीजन ऐसे को, एक जगह पे लोन पेयर, स्क्वेयर पिरामिडल ज्योमेट्री। xenon oxy tetrafluoride has square pyramidal geometry. And after this, lastly, xenon oxyfluorides में we have xenon dioxydifluoride, 8 12 14, एडअप करो, 26 प्लस 8 34, 8 से डिवाइड कीजिए, 2 से, 4 प्लस 1, दिस इज 4, 4 प्लस 1 5, 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करना चाहेगा। तो एग्जैक्टली इसकी जो शेप आएगी दैट विल बी लाइक दिस। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक लोन पेयर आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, ऊपर और नीचे एक एक फ्लोरीन। तो दिस इज सी सॉ ज्योमेट्री, जैसे बच्चों का झूला होता है पार्क्स में, इसको ऐसे टिल्ट करें तो ऐसे बन रहा है, ये देखिए। तो दिस इज सी सॉ ज्योमेट्री of xenon dioxydifluoride. So these were the oxyfluorides and this was the noble gas family, inert gases.